Namaste students, welcome to Easy Chemistry. In today's class, we are going to discuss electrophilic aromatic substitution reaction in haloarine. Now, first of all, what is electrophiles? Electrophiles are called as electron deficient species which attract towards electrons. Generally, they are positively charged. They have a deficiency of electron. The species which have a deficiency of electrons, which will attract towards the electrons and towards the negative charge, they are called as electrophile. Or any species which is positively charged, like H plus ion, Na plus ion, NO2 plus ion, Cl, X plus, Cl plus, Br plus, any alkyl group which is positively charged is called as electrophile. BF3 in boron has a deficiency of electron, that's why it is called as electrophile. This is your acetyl group, which is also called as acyl group. This is your one of electrophile. Okay, so try to understand. This haloarine is highly reactive towards electrophilic aromatic substitution, because if you can observe this resonance structure, the lone pair is revolving in a ortho and para position of haloarine. Now, which makes this haloarine highly negatively charged. It means the electrophile will easily attract towards this haloarine. Okay, first thing is that when electrophile will attack on this haloarine, it will definitely attack on ortho and para position, because here ortho and para position of haloarine is a negatively charged. It has a more density of electrons. They have a lone pair electrons. मतलब सारे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब दिस पोजीशन और दिस पोजीशन ऑफ हेलोरीन, और इधर दिस पोजीशन, दिस इज आल्सो योर ऑर्थो पोजीशन. ठीक है, तो वी कैन से दैट हेलोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स. मतलब जितने भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, they will attack on ortho and para position of haloarine. चलो एग्जांपल समझते तो we will understand more. ठीक है, तो देखते क्या हो रहा है. कि फर्स्ट रिएक्शन हम लोग समझ रहे हैं, दैट इज क्लोरिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन का ही आपको क्या करना है, क्लोरिनेशन कर देना है. तो इफ यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. फर्स्ट रिएक्शन इज क्लोरिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. अब ब्रोमोबेंजीन का भी कर सकते हो, मैं क्लोरिनेशन से एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है, तो इफ आई टेक क्लोरोबेंजीन एंड दैट रिएक्ट विद द Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, दोनों में से किसी एक रिएजेंट को आप ले सकते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ इन Cl2 देयर विल बी अ heterolysis, heterolytic cleavage between two chlorine bonds, and after heterolytic cleavage there will be formation of Cl positive and Cl negative. Now we know that Cl positive is our electrophile, Cl positive is our electrophile, and that Cl positive will attack on ortho and para position of chlorobenzene. कहाँ अटैक करेगा? As I explained you from the resonance structure, it will attack on ortho and para position. अगर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, दैट विल टेक H plus ion from ऑर्थो पोजीशन, दैट विल रिएक्ट विद द Cl minus from HCl. अगर ये क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, तो इट विल फॉर्म ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. अगर ये पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, तो इट विल फॉर्म पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. प्रिडिक्ट करो विच विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और अ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. I'm definitely saying your answer is major product is your para-dichlorobenzene. Why para-dichlorobenzene? Because two chlorine groups are far away from each other. There will be a less repulsion. Pehla reason. Second reason is your compound is symmetrical in nature.
तो सिमेट्रिकल है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। थर्ड रीजन, इट्स नेट डाइपोल इज जीरो, म्यू इसका जीरो है, ठीक है ना। अगर आपको डाइपोल मोमेंट याद हो तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। और ईच एंड एवरी पैरा प्रोडक्ट फिट्स इन क्रिस्टल लेटाइस के स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो ये सबसे परफेक्टली फिट हो जाएगा, सारे ग्रुप की डेंसिटी इक्वल डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर मेजर प्रोडक्ट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, माइनर प्रोडक्ट इज योर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमिनेशन करना होता तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो हो जाता। यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन के साथ भी ये सेम रिएक्शन करवा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज योर क्लोरीनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द अनदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। कहां पर आ रहा हूं मैं? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए आप याद रखिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर, याद रखेंगे आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज HNO3 इन प्लस H2SO4। आपको हमेशा ये दोनों का मिक्सचर लेना पड़ेगा। तो व्हाट विल हैपन इफ क्लोरोबेंजीन, अगेन सेम थिंग, इफ यू टेक क्लोरोबेंजीन, मैं क्लोरोबेंजीन के एग्जांपल से ले रहा हूं, आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगेन इफ HNO3 reacts in presence of H2SO4, so what will happen? Again the same thing, this HNO3 will break down in OH minus and NO2 plus. Now we know that NO2 plus is your electrophile that will attack on ortho and para position of chlorobenzene, that will form यहां पर क्लोरीन, यहां पर NO2, यहां से H प्लस आयन निकल जाएगा बेटा ऑर्थो पोजीशन से, this H plus ion will go to OH minus and form H2O, ठीक है। It will form 2 nitrochlorobenzene और दूसरा बन जाएगा आपका 4 nitrochlorobenzene। Again your para product is major product and ortho product is minor product, ठीक है। चलो थर्ड रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, सल्फोनेशन, इसका एज सल्फोनेशन। हमको कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं? सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन क्या होता है? तो सल्फोनेशन हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और आप यहां पर ओलियम भी ले सकते हैं, H2O7, दिस इज कॉल्ड एज ओलियम, दिस इज कॉल्ड एज SO3 प्लस H2SO4, ठीक है। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल ब्रेक डाउन इन SO3H plus and OH minus, ठीक है। Now SO3H plus is your sulfonic acid group, will attack on ortho and para position। तो मतलब आपके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। This is your 4 chlorobenzene sulfonic acid, this is your 2 chlorobenzene sulfonic acid। मेजर तो आपको पता ही है, पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर, इसका क्रिस्टल लाइन लेटर सर्कल में सबसे परफेक्टली फिट हो जाएगा ये, ठीक है। होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग फॉर नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, इट्स कॉल्ड एज फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। कहां पर जा रहे हैं हम लोग? फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। समझो क्या है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जब भी मैं बोलता हूं FC रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे मैं फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलूं तो आपको कैटालिस्ट क्या याद रखना है? फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलता हूं तो आपको कैटालिस्ट याद रखना है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। क्या खास बात है एनहाइड्रस AlCl3? तो एनहाइड्रस AlCl3 is one type of amphoteric compound, is one type of amphoteric compound। What do you mean by amphoteric? जो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो बेस की तरह काम बन जाए, बेस के साथ रिएक्ट करे तो एसिड के जैसा बन जाए, ठीक है। तो
अगर ये एम्फोटेरिक है तो ये एसिडिक और बेसिक में कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ ये एक नहीं करेगा, ठीक है। ये कभी भी बेंजोइक एसिड के साथ ये एक नहीं करेगा, ये एनिलीन के साथ ये एक नहीं करेगा, ठीक है। ये न्यूट्रल कंपाउंड के साथ ही रिएक्ट करेगा, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट है, एक अल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। पहले अल्काइलेशन समझ लेते हैं। अल्काइलेशन में हम लोग को कौन सा ग्रुप लगाना है? आर ग्रुप लगाना है। कौन सा ग्रुप लगाना है? आर ग्रुप लगाना, मतलब मीथाइल इथाइल प्रोपाइल ग्रुप लगा देना है आपको। तो ध्यान से समझिए कि इफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरोमीथेन CH3Cl, ठीक है, मैंने आर की जगह यहां पर मीथाइल ग्रुप ले लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, what will happen? Now heterolytic cleavage between CH3 and Cl, it will be a CH3 plus methyl group and Cl negative. Now methyl is a positively charged electrophile. It will attack on ortho and para position. So it will form one chloro 2 methyl benzene. Another it will be formed 1 chloro 4 methyl benzene. Hope all of you are getting. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? This is your alkylation. Para product is your major product for this reaction. Again, another one reaction is for Friedel-Crafts. It is called as acylation. ठीक है। अभी मैं जो कर रहा हूं उसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटाइलेशन। मैं क्योंकि एसिटाइल ग्रुप लगाने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। Again same thing. If chlorobenzene reacts with acetyl group, मतलब CH3C double bond O Cl, that is called as acetyl chloride, ठीक है ना। इथेनॉल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। तो in presence of एनहाइड्रस AlCl3, सेम थिंग यहां पर से क्या हो जाएगा? बॉन्ड ग्रुप टूट जाएगा, C पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाउ दिस इज योर एसिटाइल ग्रुप विच इज योर इलेक्ट्रोफाइल, विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब आपके पास क्या बन जाएगा? यहां पर एक क्लोरीन ग्रुप लग जाएगा, यहां पर एक एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज, अब ये C पॉजिटिव से अटैक करेगा। बच्चे क्या करते हैं? CH3C डबल O लिख देते हैं, गलत बात। C पॉजिटिव अटैक ऑन दैट पोजीशन, ठीक है। और यहां पर बन जाएगा क्लोरीन, यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज 2-chloroacetophenone. दिस इज कॉल्ड एज 4-chloroacetophenone. Now 4-chloroacetophenone is your major product, ठीक है। तो hope so all of you understood. We in this reaction I have explained you electrophilic aromatic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल वो समझा दिया मैंने आप लोगों को। मैंने 5 टाइप की रिएक्शन समझा दिया आपको, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। इन अ फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देयर इज 2 रिएक्शन, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, ठीक है। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टूड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।